Hi guys, we are at a special place today and we are going to show you a special place. आज हम मोटोविला आए हैं और अब देखते हैं सनी गज्जर की लाइफ कैसी है यहाँ पे। आओ धाओ बोलते हैं। ओके So today we have with us Mr. Sunny Gajjar, the founder of X Times Brake Horsepower. As you know very well, the XPH magazine. So हमारे साथ सनी साहब हैं. He has been a community builder from such a long time. जिस वक्त इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम थी, सोशल मीडिया भी उतना पावरफुल नहीं था और इन्होंने उस समय से लेकर अब तक इतना अच्छा मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी बनाया है जिसका कोई जवाब नहीं है. और आज हम इनको जानेंगे, इनके सारे पैशंस को जानेंगे एंड विल कम टू नो मोर अबाउट दिस मोटोविला एंड द थिंग्स ही डू. सो सनी, यू हैव स्टार्टेड अ जर्नी लॉन्ग बैक एंड उस टाइम पे कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंसर टाइप से कोई सेटअप भी नहीं था, बट we have seen that you have influenced so many people around the motorcycling at that time. How this journey was started? So I think this is the oxymoron, conundrum, whatever you want to call it, that I was able to do whatever I did because there were no distractions. There were no over-influencing going on. There was no clutter, in the mind space. Back in 2001, when, we had dial-up internet. So I was in college and I got my first motorcycle, Bajaj Pulsar 180, and I was also studying web designing, graphic designing, and I thought that let us have a sandbox where I can practice these skills. So क्यों नहीं एक अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर एक सिंगल वेब पेज बनाया जाए, and that was bajajpulsar.com because my bike was that. Incidentally, a lot of people used to search on Yahoo, जो कि वहाँ पे सर्च इंजन था तब उस वक्त, about Bajaj Pulsar. They used to land on my page. They used to see me as a 21-year-old sitting on my motorcycle. एक शेड्स लगाए हुए थे मैंने, and Bajaj Pulsar के बारे में मैंने थोड़ी ना ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी which was, जिसे कह सकते हैं आपकी मतलब comparing it with motorcycles like CBZ and Fiero and all those bikes of that era. एंड फिर जब मेरे को ये लगा यार, मैंने जब एनालिटिक्स चेक करे कि इतने लोग आ रहे हैं, लेट्स सी कि इफ दे वांट टू लीव सम कमेंट्स. सो आई डिड ASP में मैं काम करता था वहाँ पे, एक्टिव सर्वर पेजेस. आई डिजाइंड अ स्मॉल कमेंट चैटबॉट या कुछ भी कह लो आप. उसके अंदर लोग कमेंट्स छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, इस बाइक को गाली दे रहे हैं, इमोशंस निकल के आ रहे थे बाइक से कि बजाज पल्सर तो ये है, CBZ बेस्ट है, ये सारी चीजें. मैंने कहा दिस इज लाइक in around 1 month I got more than 1,000 comments and सिर्फ comments है वो. There was nothing that कि एक बंदा एक comment को reply कर सकता था. It was just एक के बाद एक report आ रही कि भाई ये comment आए आपके पास publicly. Then I did some research, I enhanced my knowledge, I bought the whole forum, again ASP language में. I did it myself. I designed the whole website bajajpulsar.com where people could register like you register on Facebook today. And you could talk about whatever you wanted. And that is where the whole journey started. I realized that in 1 year I had around 10,000 registrations. And now this has to become larger than just bajajpulsar.com, which was about me and my bike. Then I thought कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो छोटा हो and should have a meaning. So and XBHP was the name that I chose. And that means X amount of brake horsepower. आपको magazine पे ये X amount of braking horsepower दिखेगा because we could not get that registration for the magazine. Okay. And I say that X is an algebraic variable. X can be from 0 in a bicycle to whatever like for example Ninja H2 में 200-250 horsepower. So that is where the journey began. मैं फिर भी काम कर रहा था full time. I was working. I worked in Genpact. I worked in a lot of companies. As a graphic designer, I used to design courses, e-learning courses, stuff like that. Then one fine day, मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया. That is 2009, 7-8 years after. I was treating this as a passion. Now, let's see, I cannot go to an office anymore. मैं ऑफिस जाके भी करता क्या था. I used to liaise with my manager. भाई देखो मेरे को ना यार 2-3 घंटे एग्जीबिशन में काम करने दो. बहाने मारता था, आज छुट्टी चाहिए, ये करना है. कोई बाइक दिख गई,
सो बाइक के पीछे भाग रहा हूँ 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा लेके, सर मुझे एक फोटो खींचनी है अपनी कंटेंट के लिए. एंड यू नो XBHP वाज द ओनली प्लेस वेयर यू कुड कम एंड you know basically read about motorcycles in India. कुछ भी नहीं था, you know, up till let's say 2007 जब ये आपका Facebook और ये सारी चीजें आई, YouTube, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं. So unknowingly I created India's first automotive social media network, and you know it was like कोई भी न्यूज आती थी सब लोग वहाँ पे देखने आते थे. It was a very good golden era, very nostalgic. अगर आप आज fast forward करें 20 years down the line, इंटरनेट फास्ट हो गया है, लाइफस्टाइल फास्ट हो गया है, देयर इज लॉट ऑफ क्लटर, आप डूम स्क्रॉल करते हो, रुक ही नहीं पाते. सो यू आर बीइंग बॉम्बार्डेड विद सो मेनी थिंग्स एंड यू नो यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी पीपल दैट आपको ये नहीं समझ में आता कि किससे इन्फ्लुएंस होना है, किससे नहीं होना है, बिकॉज इन्फ्लुएंस इज नॉट ओनली पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, यू नो. सो आई जस्ट विदाउट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है इट इज अ वेरी सेरेंडिपिटियस थिंग. लाइक जैसे होता है बेसिकली आप जो हो रहा है होने तो अच्छे के लिए हो रहा है, दैट टाइप ऑफ थिंग. एंड आई रियली एंजॉयड द एरा बिफोर द सोशल मीडिया बिकेम व्हाट इट इज टुडे. नॉट दैट कि ये खराब है, एवरीथिंग हैज टू टेक इट्स कोर्स, बट दैट इज द स्टोरी ऑफ मी एंड XBHP इन अ वेरी शॉर्ट यू नो वे. यस, तो आज एक नया चीज पता चला कि सनी वाज आल्सो इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग. Big time. And I am still. I still design all the XBHP covers myself. Wow. I want to design it myself. Very nice. So अभी और जानेंगे इनको, इनकी एक नई चीज बताता हूँ कि he is hell into video games. तो as you say कि life is to be lived like a video game. तो वो क्या है, ये पैशन क्या है? So अब ये एक again एक oxymoron type हो गया कि I am actually not into video games at all. Reason is I love video games. I have all the consoles. I have a beautiful rig. Everything जो एक video gamer को चाहिए. But the moment I sit, I open any video game, even on my mobile, I feel it's a waste of time for me, not for you guys. You know, I mean, please don't beat me to death for this, because you know, in that time I can do a lot of things. I do research कि अगली country क्या करनी है, अगली कार कौन सी चलानी है, magazine के लिए एक article लिख दिया, कुछ भी हो गया. But you know, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मिनट भी उस पे वेस्ट नहीं कर सकता. आई कैन वेस्ट इट ऑन माई सेल्फ, लाइक यू नो मे बी खाना खाते हुए 15 मिनट के लिए मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ बस 20 मिनट, उससे ज्यादा मुझे लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग. सो वीडियो गेम्स रिक्वायर टाइम, एंड इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, वीडियो गेम्स डू नॉट गिव यू एनीथिंग, आई फील, एक्सेप्ट मोर स्ट्रेस, मोर स्क्रीन टाइम, more stress on your brain and everything. That is what I feel. So about your other part, like living life like a video game, that is true, because what I cannot do in virtual like video games mein, I do in real life, like supercars chalana and super bikes chalana. And you know, I am also surprised that I have managed to do it so far. Like for 20 years I thought that this dream will end, अभी चलो 1 साल और निकल जाएगा, 2 साल और निकल जाएंगे, but अभी तक हो रहा है. And you know, I've just come from a world tour, and I'm again circumnavigated the whole globe. I rode and drove 17 supercars and super bikes around the world in 6 countries. अभी मैं फिर से like continue में है, and you know next week I'm going to drive 8 supercars in 8 days, 200 kilometers every day. So I have to shoot, and you know, so this is like something which I want to do. It's not because I'm doing because मेरे को content बनाना है social media के लिए. I have realized that this was how I was since I was 18, 19, 20 years old. मेरी आदत ही यही है. Before social media came and tried to influence कि भैया content social media के लिए बनाना है. सनी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीज़ें जान के. एक चीज़ मेरे को और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स भी जाने कि आप, नो स्टार इज बॉर्न इन ओवरनाइट. टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बहुत कुछ लगता है उस चीज़ के लिए, पैशन चाहिए. बट इस स्टेज पे आने के बाद भी, एक सेलिब्रिटी, बाइकर, इन्फ्लुएंसर, मोटो इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी आप इतने हम्बल कैसे रहते हो? एंड दैट इज़ द, आई थिंक वन हैज़ टू नो अबाउट कि इतना हम्बल रह के आप सेलिब्रिटी भी हो और हम्बल भी हो. तो हाउ दिस टू थिंग्स आर रिलेटेड? सो मेरे बारे में बहुत लोग एक असेसमेंट करते हैं, आई एम अ वेरी एरोगेंट पर्सन. अच्छा. हाँ, पीपल हु डोंट नो मी, आई मीन द रीजन इज बिकॉज आई डोंट स्पीक टू पीपल. आई एम, मैं नहीं कहूँगा इंट्रोवर्ट, बट मैं खुद कभी मतलब यू नो अपने आप मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ, एंड दैट इज माई हैबिट सिंस द बिगनिंग. सो आई एम अ सोलो यू नो काइंड ऑफ अ पर्सन. राइड पे जाता हूँ, ड्राइव पे जाता हूँ, सोलो शूट करता हूँ, जो मुझे करना है मैं खुद करता हूँ. आई डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. तो उसके ना फिर क्या होता है कि आप यू नो यू कांट हैव
the same person, same kind of a nature in one segment and not have it in other, segments of life. People misjudge you because of Yeah. that. And that misjudgment also helps me sometimes कि थोड़ा disappointment हो जाता है when people, they just basis on this, they become like gatekeepers. Lot of times, now I'm digressing a little bit, in companies, सनी को काम नहीं देना, XBC को काम नहीं देना, हाँ, बहुत होता है, अब भी आज की डेट में भी. So this is a part and parcel, and it just, it's so exciting, because I want to tell you one thing, I'm writing a book. अच्छा. I'm writing all these Very nice. incidents with evidence, तो नहीं कहना चाहता हूँ, हाँ. but emails आ गई, messages आ गए, and this book I'm going to publish that अच्छा. maybe without people's names because Yeah. किसी को ऐसे क्यों करना. Correct. After I'm done with all this, अभी करूँगा तो भैया मतलब थोड़ी आग वाग लग जाएगी, न्यूक्लियर बम फट जाएगा. But this is something which मैंने कहा कि चलो यार अभी 10-15 साल और छोड़ते हैं, एक किताब निकालेंगे about my life, about life as a journalist, about lot of things that I've learned about life as whatever, about how people treat you, how people think about you. So it will be more like a philosophical kind of a book rather than क्या करना है क्या नहीं. Very nice. आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ किया है, कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ कर लिया है, थोड़ा सा स्टेप बैक करूं या रुक जाऊं? मुझे लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, विदाउट एक्टिंग कॉकी या भैया कि आई फील आई हैव डन नथिंग. Very nice. मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है ना, बिकॉज देन आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च कि भैया मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, भाई डिप्रेशन में तो नहीं हूँ, क्या है प्रॉब्लम क्या है. देन मुझे रियलाइज हुआ कि पीपल हु आर इनहेरेंटली इनसिक्योर इन लाइफ, लाइक देयर वाज स्टीव जॉब्स, मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, मतलब लाइक भी नहीं उतने बड़े नाम लेने के लिए. बट I'll tell you first of all, if you need to understand me, who are my idols? Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson. These 3-4 people, they are my idols. ऐसे बहुत लोग हैं जो हैं, like Obama is there. So the reason is they're self-made and they don't really care what about the other person thinks about them. They do. ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल दोगे. But I feel that कि you need to have a certain kind of a मतलब आप होता ना जैसे the two cogs they fit together. Yeah. So मेरी जो personality है, that's why I like them. And as an extrapolation of all this, I feel that कि भैया you need to, जो Steve Jobs ने बोला था, stay hungry, stay foolish. Lot of people have achieved much more than me. आज की डेट में जो यूट्यूबर हैं वो 2 साल में वो कर गए जो मेरे को 15 साल लगे करने में. But does it mean that I am a failure? Yeah. Does it mean, what does it mean? There are a lot of branches to this. If you get whatever you want very early in life, you have to live such a long life, you will lose thrill. Yes. मैं अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी इंटरनेट के बारे में कि यार 900 Mbps का इंटरनेट आ रहा है मेरे फोन पे 5G में यहाँ पे. आई वॉज एक्साइटेड. तो एक बंदा कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, 4 महीने से आ रहा है. मैंने कहा यार एक्साइटमेंट हो रही है, होने दो. आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होगी ना लाइफ में, हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, भैया मैं तो 30 मार खाऊं ये हूं, क्या फायदा क्या है. सो दैट इज द होल थिंग, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई फील दैट पीपल आर मास्टर्स इन मेकिंग फूल ऑफ देमसेल्व्स कि भैया मैं ये काम पसंद करता हूँ, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को या अपनी ऑडियंस को. सो वो भी एक्चुअली ना रियलिटी चेक लेना बार बार जरूरी है कि भाई मैं अगर पूरा वर्ल्ड घूम रहा हूँ, एफर्ट बहुत लगता है, मतलब ये वो, पर मुझे मन कर रहा है कि नहीं. हाँ जी मन कर रहा है तो आप सही कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ रुपए नहीं कमा रहे, 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो, वट एवर, बट एज लॉन्ग एज आप खुश हो, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको खुशी नहीं मिल सकती, रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती. सक्सेस का तो मुझे डेफिनेशन आज तक पता ही नहीं कि व्हाट डज इट मीन. सो कभी ख्याल आया था मन में कि सेलिब्रिटी बाइकर बनना है? मैं आज भी सेलिब्रिटी बाइकर नहीं हूँ. सेलिब्रेशन दिस इज लाइक, ये सारी चीजें जो है ना नई न्यू एज सोशल मीडिया और जो है उससे बनी है. मेरे हिसाब से हर आदमी के लिए एक ऑडियंस है. हम कहते हैं ना यार ये तो क्रिंज कंटेंट बना रहा है, ये तो छपरी है, ये तो ये है. अरे भाई तुम्हें क्या लेने देना, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तुम मत फॉलो करो. एज लॉन्ग एज वो किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी के पैसे नहीं मार रहा, किसी को हार्म नहीं कर रहा, या वो 300 की स्पीड पे दिखा नहीं रहा है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या वो ऐसे गर्ल पिकअप प्रैंक्स और ये सारी चीजें नहीं कर रहा. ये थोड़ी बहुत चीजें हैं विच इज अ बिग नो, तब तक मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है. सही. तो इतना लंबा जो जर्नी रहा आपका, इस जर्नी में क्या एक बार कभी लगा कि यार बंद करता हूँ, यू वांटेड टू गिव अप, ऐसा कोई सिचुएशन था? हाँ मतलब क्यों नहीं लगेगा, लगना भी चाहिए. अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपको ये चीज ना लगे, तो हाउ विल यू रिफ्लेक्ट, हाउ विल यू इंट्रोस्पेक्ट. आप तो ये इसमें रहोगे ना यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ, राइट. तो आपको जब ऐसा लगता है तो आप अपने आप को देखो. अगर आपको कुछ और करना है तो मैंने कभी कभी ये सोचा यार देखो मैं
एक कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकता था, 5 लाख रुपए महीने का कमा सकता था, 6 लाख रुपए, पर मैंने कहा यार वो 6 लाख रुपए का करूंगा क्या अगर मुझे 1-2 घंटे ट्रैफिक में लगा के रात दिन लोगों को मैनेज करना, ये करना है, वो करना है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊँ, कुछ ना ले पाऊँ, घूम ना पाऊँ दुनिया, फिर ऐसी मर जाऊँ, कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, जिंदगी नहीं जी पाया तो फायदा क्या है। तो मैंने फिर ये कहा कि चलो यार, मैं एक साइकिल होती है आपके दिमाग में चलती है, पर ये साइकिल सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। उन कुछ मिनटों में ना आपको रियलाइज हो जाता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये मेरे साथ है कम से कम। सो रिग्रेट कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जो अभी तक मैं कर रहा हूँ, भगवान की दुआ है कि कैसे कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आई एम सो थैंकफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी रिलेट की आपसे कि जो आपने बोला कि इन्फ्लुएंसिंग का कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं या कितने टाइम के अंदर कौन कितना बड़ा बना है। इट इज़ अबाउट हाउ यू इन्फ्लुएंस। आप एक रूम में बैठ के भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो और एक जहान में जाके भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दैट इज़ रियली, आई रियली लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। एंड एक बात बताओ, आपकी इस जर्नी के अंदर 20 साल की जर्नी होगी आपकी, उसके अंदर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, बहुत कुछ अचीव किया, कितनी कंपनी से के लिए काम किया आपने, कितना मतलब कि जेन्युइन जो चीज़ थी लोगों तक पहुंचाई आपने। तो एक टॉपिक मेरे माइंड में बार बार आता है कि हाउ द पीपल नाउ डेज, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होना चाहते हैं, तो उनको जब वो करना चाहते हैं तो वो कैसे चूज़ करें कि राइट उनका स्पॉन्सर कौन हो या वो किस कंपनी के लिए काम करें, हाउ टू क्रिएट actually a greater value rather than just for doing it for a money sake, how they can do for a greater value, which can be a win-win situation for as a influencer, as a brand owner also, which is associated with them, how to get them on board, and it should be it should be relatable and value creation for the community also. Basically, Yeah, for the people there who are following them. See, this is a very sensitive topic. इसमें बड़े बड़े MBA वाले भी फेल हैं और आपके बड़े लाखों करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स जो फॉलोअर्स वाले हैं वो भी फेल हैं। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। और व्हाट हैज़ वर्कड और नॉट वर्क फॉर मी, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, इज दैट how I am, like what time I have given to XBHP. Lot of people, they support me because they've seen me since a long time. उनको पता है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं। Lot of people don't support me because they compare me with let's say for example यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे relative objectively, but with a person who has let's say 1 million followers, अब उसके वहाँ पे लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, लाखों लाइक्स आ रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिविटी उस मार्केटियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के लिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं, सब्जेक्टिविटी भी है कि भाई बंदा कौन है, सामने कौन है, लाइक एंड कितना उसका लाइक हाउ हैज ही बीन मेड बाय सोशल मीडिया और हैज ही बीन मेड बाय his actions that he has taken, मतलब उसकी और क्या skills हैं, if you see his resume, is there anything except a YouTube channel or an Instagram, no matter how famous you are. There are a lot of things. Now coming to the point कि sponsorship, see there is a pool of money, 100 रुपए हैं, 100 रुपए 10 साल पहले ज़्यादा लोग नहीं थे, to take that money out of that 100 rupees pool. There were outfits like आपकी magazines हो गई, आपके थोड़े बहुत YouTube channels हो गए। आज की डेट में same 100 rupees has lost value because of inflation, number one, and that has to be divided into lot of people, big and small influencers. So people who, मैं कोई नहीं कहने वाला होता कि भैया deserve करता है कौन नहीं, but everyone is losing out. क्योंकि वो divide इतना हो गया है, people who are famous, they are under pressure कि मेरे numbers drop नहीं होने चाहिए। Indirectly they have to create content which is categorized as छपरी content या cringe content या ये वो, जो एक्चुअली में लोग काम कर रहे हैं वो कहीं कहीं डिसहार्टन हो रहे हैं, यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बंदा यहाँ से वहाँ पे पहुँच गया। एंड बेसिकली ये जो थिंकिंग है, ये सेम थिंकिंग रिफ्लेक्ट होती है मार्केटिंग साइड से। जब आप टेबल, हम वी वर्क ऑन बोथ एंड्स। जब वी आर असेसिंग एनीवन टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद अस दैट हैज बीन मैंडेटेड बाय अ कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पार्टी को बाहर से लाना चाहता हूँ, किसी बंदे को कितने नंबर्स हैं वो यही पूछा जाता है। क्वालिटी हम कहते हैं कि सर पहले क्वालिटी देखो आप कि भैया क्या बोल रहा है ये, नंबर्स आपके आ जाएंगे। मतलब ये बहुत एक फेमस सेइंग है कि आप मुझे बताओ कि मारुति के शोरूम पे ज्यादा लोग होंगे कि लैम्बोर्गिनी के शोरूम पे। ठीक है, नॉट टू मतलब डिसरिस्पेक्ट एनी ब्रांड, बट सी इट इज अगेन, अगर आप मारुति के शोरूम हो, एग्जांपल देता हूँ, तो आपके पास पावर है ज्यादा लोगों को मोबाइल करने की,
लैम्बोर्गिनी वाले को आप एक बंदे को कर रहे हो वर्सेस 1000 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। सो अगर आपके पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप अच्छा कंटेंट बनाओ, उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करो, आप मारुति बनो, इनफैक्ट आप उनको कुछ एनेबल तो करो। बहुत आज की डेट में ना बहुत कचरा हो गया, और कौन किसको स्पॉन्सर करना चाहता है ब्रांड मैनेजर को भी नहीं पता। फिर वो क्या करते हैं कि वो एजेंसीज को हायर करते हैं। यार एक और बंदा बीच में आ गया, एजेंसी। अब एजेंसी वाले में क्या होता है कि वहां पे एजेंसी वाला किसको क्या पसंद करता है, मेरे को ये पसंद नहीं, इसको हटाओ, चाहे कितना भी वैल्यूएबल हो, या इसको लाओ। सो ना आप लूज आउट कर जाओगे या आप विन कर जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स नाउ। टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस, यू वांट टू रिलाई ऑन स्पॉन्सरशिप्स एंड नॉट यूट्यूब मनी। यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है, अगर उसके अलावा भी आपको ब्रांड्स चाहिए, मेरी जो फिलॉसफी रही है, आई वर्क विद द बेस्ट ब्रांड्स ओनली। आई हैव रिफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक बियर्डो। मुझे कह रहे हैं कि यार आप मुंह धोते दिखाना, ऑयल लगाते हो, कह रहे हैं मैंने सवाल ही नहीं उठता, मैं अपने आप को नहीं ऐसे बेचने वाला। बट दिस इज माई फिलॉसफी। हेयर स्किन केयर ब्रांड्स एंड लॉट बेट जो आपके चलते हैं, स्पोर्ट्स बेट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियल एप्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई लोग, कोई भी अगर एक बंदा देख रहा है, अगर आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, आपको ऐसा कुछ बेटिंग या ऐसे फाइनेंशियल ऐप के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। देयर इज नो शॉर्टकट। अल्टीमेटली दिस विल ऑल कम बैक टू यू। आज आपको पैसा मिल रहा है, कल जिंदगी वापस घूम के आएगी। देयर इज नो वे ऑफ अर्निंग इजी मनी जो आप लोगों को बता रहे हो। सो कैसी स्पॉन्सरशिप लेनी है ये भी आप देखो। मैं बेस्ट ब्रांड चूज करता हूँ जो मेरे को वैल्यू ऐड करे। मैं बहुत टाइम फ्री में भी काम करता हूँ। अगर मुझे मर्सिडीज या पोर्शा बोल रही है, मैं पैसे थोड़ा मांगूंगा। ऑब्वियसली यार आप मुझे कार दे रहे हो, मेरे ब्रांड को ऐड कर रहे हो, सो आपको ये भी समझना है कि यार आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, यू विल ऑलवेज नीड पीपल। शाहरुख खान थोड़ी ना बनाया अपने आप, उसके लिए उसका पूरे सपोर्ट सिस्टम है, कैमरामैन से लेके उसके बंदा जो मैनेजर है, सब लोग हैं, राइट। सो एक तो ये नेक्स्ट चीज होती है ईगो। अगर आप ईगोइस्टिक हो गए, अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है या ये फॉर एवर लास्ट करेगा, आप भूल रहे हो। जिस बंदे ने आज लाइक करा है ना, वो 2 साल बाद 2 साल ओल्डर होगा, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, आपके व्यूज डाउन हो जाएंगे। और यही होता है। आप यू आर लेफ्ट विद 4 मिलियन फॉलोअर्स, पर आपके व्यूज नहीं आ रहे, 100,000 व्यूज आ रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि बाकी लोगों की एज बढ़ गई। आप वही कंटेंट बनाते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मेरी ऑडियंस तो यही कंटेंट पसंद करती है, मैं ऐसी नाच गाना करूंगा। सही बात है। इससे क्या होता है, स्पॉन्सर्स, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मैं तो बना ही यूट्यूब से था, कोई स्किल सेट नहीं है, रिज्यूमे में कुछ नहीं लिखा हुआ एक्सेप्ट 12th पास या आपकी बीकॉम, व्हाटएवर, आपके पास रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगेन ये ना मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप, बट स्पॉन्सरशिप इज इक्वल टू मनी। So but you have said lot of things which today's youth has to understand. Yeah. आपने बात की कि भी कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपने बात की कि इट्स नॉट अ वेरी इजी वर्क, है ना, जल्दी पैसे कमाने का ये नहीं होना चाहिए कि यार आप भय मत जाना कि ये सिर्फ 3-4 साल का गेम है। आपकी एज अगर आज 20 साल की है, 22 साल की है, और आपको 40 साल 50 साल तक करना है, बिकॉज पीपल हु गेट वेरी फेमस एंड अगर वो अपना फेम लूज कर देते हैं, व्यूज लूज कर देते हैं, दे गो इनटू सीरियस डिप्रेशन। आई एग्री विद सनी ऑन दिस। एक्चुअली क्या है कि आज की डेट के अंदर जो बच्चे लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी और इजी मनी करना चाहते हैं, जिसके कारण वो एक कोर वैल्यू भूल जाते हैं कि वाई दे आर डूइंग दैट थिंग फॉर अ लार्जर गुड। तो वो जो सनी की बात है कि मैच्योरिटी ओवर द टाइम रेगुलर रहनी चाहिए, जैसे हम बिजनेसेस में भी देखते हैं या कोई और चीज़ों में भी देखते हैं कि ओवर द टाइम हमको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए अपने आप को फॉर द उस टाइम के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है कम्युनिटी की। सिमिलर वे जो हमारा कंटेंट हो या जो हमारी वैल्यू क्रिएशन है, वो भी ओवर द टाइम अगर हम इम्प्रोवाइज करते जाएंगे तो देन ओनली यू विल बी इन द गेम, अदरवाइज यू विल lose out. So there is no wrong or right in the content. हर किसी के लिए कंज्यूमर है, बट अगर आप ये भी सोचो कि आपको कौन नचवा रहा है और आप नाच रहे हो किसके लिए, यू नो, ये बेसिकली चिकन एंड एग थिंग है, और ये कब तक आप कर पाओगे। तो सनी, मतलब कि जैसे आपने कहा कि भाई आप डिप्रेशन में भी आ सकते हो, एंड पीपल हैव यू जॉइंड अ मूवमेंट फॉर टू स्टॉप the youth from the use of drugs. So tell us about it. Ki what made you bring closer to this kind of social activity? So I think see that we did in Road Trip NIT 2022. उसमें एक NGO के साथ हमने टाई अप करा था, and this is a very big problem amongst youth.
एंड जैसे एक सोशल मीडिया एक टाइप का ड्रग है, ऐसा एक्चुअल ड्रग भी ऑफ कोर्स शुरू से प्रॉब्लम रही है. लॉट ऑफ things, you know, families have been destroyed, careers have been destroyed, lives have been destroyed. So हमने एक सोचा कि मोटरसाइकिलिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे कि यूथ का अटेंशन ग्रैब करा जा सकता है amongst other things in India like cricket, Bollywood. एक मोटरसाइकिलिंग ऐसा चीज़ है which is also the last urban sport I feel left to man. एक saying है वाली. तो हमने कहा कि कोशिश करते हैं but this problem is so big that you can't even imagine. बट इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है. मैं पिछले 20 साल से जो XBHP है एंड मैं वी आर एक्चुअली एडवोकेटिंग, जैसे आपने एक वीडियो में बताया था एडगैट, ऑल द गेयर ऑल द टाइम. ठीक है, वो जो टर्म है हम यूज करते थे 15-20 साल पहले अपनी फोरम पे. एंड बेसिकली उससे जितनी लाइव्स बच सकती हैं अपने रेलेवेंट डोमेन में, हेलमेट हम वी हैव कम आउट विद हेलमेट्स विद एक्सॉर, आपको पता है. सो ये चीज आई थिंक ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज हम ये बहुत सालों से कर रहे हैं. और आज की डेट में भी लोग जो हैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार 5 लाख रुपए की बाइक खरीदे लेकिन आप 10-15 हज़ार रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते, यू नो, या घर के पास ही जाना बिना हेलमेट के जाएंगे. सो आई थिंक दैट इज अ मच मोर रेलेवेंट एंड बिगर थिंग. ड्रग्स इज समथिंग दैट द होल सोसाइटी हैज टू फाइट टुगेदर. So this brings to our next topic of the thing that आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया कि लोगों को रियल जो ड्रग्स हैं जिससे ज़िंदगी ख़राब हो रही है उससे अच्छा तो मोटरसाइकिलिंग में चले जाओ. क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक तो फ्रीडम और इम्प्रोवाइज हो जाएगी और आप और दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे. एंड ऑल्सो जब हम मोटरसाइकिलिंग करते हैं तो एक हमारा शुरू से इनिशिएटिव रहा है, तभी हमने ये प्रोग्राम भी चालू किया था कि रिस्पॉन्सिबल राइडिंग. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सनी इज अ रिस्पॉन्सिबल राइडिंग? See, again, it is a lot of things. Basic essence में without going into philosophy ये कि भाई wear helmet, but people say don't overspeed on roads. Of course 200-300 तो नहीं करना है, but एक और चीज़ है कि you have to be aware of कि where are you riding. If you are riding in a city like Delhi, अब for example देता हूँ मैं, सुबह राइड करो 6 बजे, सामने रेड लाइट हो जाती है ना, खाली रोड है, don't stop. If you stop, I mean, इधर उधर देखो, स्लो हो जाओ, but don't stop. आप पीछे से ठोकोगे. See, these are the things that you have to adapt yourself कि आपको एक्सपीरियंस से आ सकती हैं. Be little faster than the traffic, you know, because सबसे ज्यादा केसेस पीछे से ठोकने वाले ही होते हैं यहाँ पे. सो एकदम से ब्रेक मत मारो ट्रैफिक में, यू नो, ये एकदम से ब्रेक मारिए, पीछे वाला नहीं मार सकता. आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास बाइक है, जैसे KTM 390 हो गई या 600 सीसी हो गई, 1000 सीसी हो गई, तब की बात कर रहा हूँ. और देन यू नो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू नोइंग भाई व्हेन यू आर इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स. सिंपल, यू नो, अगर रूल फॉलो करोगे जस्ट यू नो बिना सोचे समझे कि भाई मतलब अब यूएस का ही ले लो, मैं यूएस से होके आ रहा हूँ, अगर आप फास्ट लेन में हो, फास्ट लेन में यूएस में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता आपको. अगर पीछे है तो आपके राइट साइड से लेके निकल जाएगा. यूरोप में ऐसा नहीं होता. यूरोप में वो वेट करेगा कि आप फास्ट लेन से स्लो लेन में आओ, फिर वो आगे निकलेगा. सो आपको देखना पड़ता है कहाँ हो क्या नहीं हो. जर्मनी में आप निकलोगे तो पहले बाइसिकल लेन आती है, वहां पे बाइसिकल वाले आते हैं यार इतनी स्पीड से, और अगर वो ठुक गए, जरा सा आपने कार बाहर निकाली, बहुत ऐसे केसेस होते हैं. तो वो सारी चीजें जो ना आपको समझनी है. You know, and responsible riding is much more than you know just following a set of rules. So basically, Sunny is saying कि जो उस local environment ecosystem है उस एरिया का, उसके हिसाब से राइडिंग करनी है. ये नहीं कि बिल्कुल अपनी मस्ती या धुन में चल रहे हैं और पीछे और आगे पीछे वालों को कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो जब आप राइड करते हो तो आपके किट में व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ योर किट? सो अभी तो मैं एकदम लाइक आई हैव गॉन डाउन टू द बेसिक्स थैंक्स टू दी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी. मतलब अब मैं पहली बार मैंने लाइफ में लाइक आई जस्ट शॉट एवरीथिंग विद माय फोन. अच्छा, मतलब पूरा वर्ल्ड घूम लिया सिर्फ एक फोन लेके, आई एंड वायरलेस माइक एंड 2-3 और चीजें, मतलब गिम्बल विम्बल हो गया, AI गिम्बल, ऑफ कोर्स एक्शन कैमरा. सो जो ये तो हो गई हमारी नेसेसरी किट, ठीक है. एंड और बाकी सारी चीज़ें, फ्यू मेडिसिन्स दे आर वेरी नेसेसरी बिकॉज आप वर्ल्ड में कहीं भी जाते हो, मेडिसिन ओवर द काउंटर बहुत मुश्किल होती है मिलना, अगर आप यू डोंट नो द लॉज, ऐसे सब सारी चीज़ें वो है. एंड देन आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो किट में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, यू नो, कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट यू नीड. एंड ऑफ कोर्स आप कहाँ जा रहे हो, बारिश तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें, यू नो, रेन गेयर होना चाहिए एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. That's about it. तो सनी, आपने मोटोविला के बारे में बताया,
लेकिन मैं जब पहली बार आपके दिल्ली वाले ऑफिस में आया था, वहाँ मैंने आपके ऑफिस में देखा था पूरी आपकी ये सारी फिगरिंग्स एंड कलेक्टिबल्स आपकी जो रखी हुई थी. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड स्पेशली जो कार्स आपने टांग रखी थी अपने वॉल पे. यू हैड अ फुल वॉल ऑफ हॉट व्हील्स. सो टेल अस मोर अबाउट दिस कि कैसे आपने उस छोटे से घर, मैं तो देख रहा हूँ आपने पूरा ही घर ऐसे बना रखा है. मोटोविला कर दिया. मतलब कैसे आया दिमाग में? जस्ट कि आप अब जैसे आपने राइडर्स प्लैनेट चलाया होगा, जब आपने कहा होगा कि चलो यहाँ पे एक ग्लव सेक्शन होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके वो आज की डेट में क्या बन गया. So वैसा ही है कि दिस इज लाइक अ सैंड बॉक्स फॉर मी. क्रिएटिविटी, थोड़ा कभी खाली बैठे हैं तो ये सोच ले ये करना है. सो वॉट एवर यू आर सीइंग, इवन दिस डिस्प्ले ओवर हियर इज बेसिकली कस्टम. कि भैया यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो फोन के थ्रू, ऑल दीज स्मार्ट लाइटिंग. एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई व्हेनेवर आई यूज्ड टू एंड अ ट्रिप, सो आई हैव डन 64 कंट्रीज. सो आई यूज्ड टू से ठीक है यार, मैंने ये ट्रिप कर ली, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. सो थोड़ा सा मेरे पास बजट है, डील्स चेक करते हैं. यूएस जैसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. तो मैं वहाँ से कलेक्ट करके धीरे धीरे मैंने वो कलेक्शन बनाई है. एंड आई हैव अ स्टोरी अबाउट, आई रिकॉल अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट हियर. कि भाई मैं ये नürburgring में मैंने BMW i8 चलाई थी. उसके बाद मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे एक स्टोर था, वहाँ से मैं ये 2 कार खरीद के लाया हूँ. ऐसी चीजें जो है. सो इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग गुड टाइम्स. आई एम नॉट अ कलेक्टर पर से कि भाई मैं जबरदस्ती जो भी देखा मैंने कलेक्ट कर लिया, बट एक रीजन है. एंड वो हॉट व्हील्स के बारे में, वो बेसिकली वो दरवाजा था, वॉल यहाँ पे है. हाँ, यहाँ मैंने पूरा वॉल देखा है आपका. सो दैट इज वेरी नाइस. तो अगर और लोग आपके इस मोटोविला के बारे में जानना चाहें और इसको देखना चाहें तो कैसे देखें? सो वी हैव गॉट रिक्वेस्ट कि भाई यहाँ पे मैं एक्चुअली सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाता हूँ जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे आप. बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि दिस नॉट एन ओपन प्लेस, दिस इज अ प्राइवेट एरिया. सो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो अदर देन दैट यू कैन फॉलो @themotovilla ऑन इंस्टाग्राम. और मैं सोच रहा हूँ मीट्स अरेंज करने की 5-5 लोगों की, 6 लोगों की, जैसे कि वंस इन अ मंथ की आए, वो यहाँ पे कॉफी पे बात करें. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो दिस वाज आवर chat with Sunny. We enjoyed talking to him, and I'm sure you all must have enjoyed hearing what he said. He has lots of messages, he has lots of insights on what he has been doing. हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. एंड जो कुछ उन्होंने बताया कंटेंट जनरेशन के बारे में, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू लॉट ऑफ पीपल who might be hearing this. So thank you, Sunny, for being with us, for sharing. Anything else you would like to add for the youth? Yes, it is important to follow your dreams and don't, I mean, you listen to everyone, but वही है कि सुनो सबकी, करो अपनी और सोच समझ के. तो can work both ways. एंड ऑफ कोर्स आप जहाँ पे बैठे हैं, जो आप बोलने वाले थे शुरू में दिनेश जी, ये मोटोविला है. और हर चीज में मोटो आना जरूरी है, मतलब तो मोटोविला है ये. एंड मेरा बनाने से पहले एक ही था ऑब्जेक्टिव कि मेरी बाइक के अंदर पार्क होनी चाहिए, बाकी सब फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे पीछे भी इनके ड्राइंग रूम के अंदर हम इनकी 2 बाइक्स के साथ बैठे हैं. सो थैंक यू सो मच राइडर्स प्लैनेट एंड एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. सो गाइस, इफ यू have liked what you have heard over here, do share your comments, do like and subscribe our channel, and if you have anything more to ask, don't hesitate to write down in the comment section. We'll be happy to answer them. Thank you guys. Thank you. Ride safe.